the principalities and powers of darkness. और हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों के साथ में है. Your battle is with the principalities. और आपका जो युद्ध है वो आकाश मंडल के अधिकारियों के साथ में Let है. me tell you one thing. और एक बात मैं आपको बताना If चाहता you हूँ, want to be victorious in your spiritual battle, आपके आत्मिक युद्ध में अगर आप जीतना चाहते हैं, you need to see yourself as God sees you. आपने अपने आप को वैसा देखना चाहिए जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं. Amen. Amen. That's why he's saying, और इसलिए वो कह रहे हैं, may the God give you the spirit of wisdom and revelation. इसलिए वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. And the verse 18 he says, और वचन 18 में वो कहते हैं, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. और 18 पद में कहते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. Amen. Amen. Once you know the power which is working in you, अब जब आप इस बात को जान जाते हैं कि आपके अंदर कौन सी सामर्थ काम कर रही है, devil cannot conquer you. शैतान आपको जीत नहीं सकता. When you know your identity, जब आप अपनी पहचान को पहचान जाते हैं, when you know your position, जब आप अपने स्थान को पद को पहचान जाते हैं, everything in your life will start to change. आपके जब सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा. That's the reason. और यही कारण है The Paul is praying, may the God give you the spirit of wisdom and revelation. कि पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. Amen. आमेन. So if you want to see as God is looking at you, और जैसे आप अपने आप को वैसा देखना चाहते हैं कि परमेश्वर जैसा आपको देख रहे हैं, you need to understand what Jesus has done for you. और इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है. What Christ has given you. मसीह ने आपको क्या दिया है. Once you know that, जब आप इस बात को जान जाते हैं, everything in your life will start to change. आपके जो में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा. Amen. आमेन. When this revelation came in my life, जब ये प्रकाशन मेरे जीवन में आया, I have seen tremendous miracles. मैंने अद्भुत चमत्कारों को देखा है. In last week, पिछले सप्ताह में there was a girl they brought a girl in our meeting. हमारी मीटिंग में एक लड़की को लेकर आए. She was in ICU for last 4 months. और पिछले 4 महीनों से वो आईसीयू में थी. And 2 months she spent in the general ward. और 2 महीने उसने जनरल वार्ड में बिताया था. Almost 6 months she was in ICU. और hospital. और करीब 6 महीने तक वो अस्पताल में थी. She was having a sickness that there is no medication for that sickness. और उसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी. You know, they gave a 1.5 lakh rupees or injection, then 2 lakhs, then 2.5 lakhs. और उन्होंने उसको कभी 1 लाख रुपए का इंजेक्शन दिया, कभी 1.5 लाख का, कभी 2 लाख का इंजेक्शन दिया. And right after that also, उसके बाद भी she was unable to eat anything, she was unable to swallow anything. वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी, कुछ भी निगल नहीं पा रही थी. And she was brought in that meeting. और उस सभा में उसको लाया गया. And she was laying there. और वहाँ पर वो लेटी हुई थी. So when we went and prayed with the authority, और जब हमने वहाँ पर अधिकार के साथ प्रार्थना किया, after the 6 months, और 6 महीने के बाद she was walking on a lake. वो अपने पैरों पे वहाँ पे चलने लगी. She took the water bottle. उसने वाटर बॉटल हाथ में And ली she began to drink the water. और वो पानी पीने लगी. She took the food and she began to eat. और उसने खाना लेकर वो खाना खाने लगी. She was unable to eat anything. कुछ भी खा नहीं पा रही थी वो. But that day, लेकिन उस दिन instantly, तुरंत ही she received her healing and miracle. उसको अपनी चंगाई मिली और अपना चमत्कार मिल गया. Understand one thing. इस बात को आप समझ जाइए. Church, you need to see yourself as Christ is seeing you. जैसा मसीह आपको देखता है, आपने भी अपने आप को वैसा ही देखना चाहिए. You need to look at yourself as the Christ is looking at you. आप अपने आप को जब देखते हैं तो ऐसा देखिए जैसा परमेश्वर मसीह आपको देखता है. Amen. Amen. And that's the reason. और यही कारण है You need to understand your authority. कि आपको आपके अधिकार को समझना है. You need to understand your identity. आपकी पहचान को आपको समझना है. You need to understand your position. आपके पद को आपको समझना है. Once you understand your position and identity, जब आप अपने पद को और अपनी पहचान को समझ जाते हैं, your victory will be limitless victory. आपके जो जय है उसकी कोई सीमा नहीं होगी. You will walk in a glory. आप महिमा में चलेंगे. You will see the blessings of the Lord in your life. आपके जीवन में आप प्रभु के आशीषों को देखेंगे. Amen. आमेन. So once you understand your authority, जब आप एक बार अपने अधिकार को समझ जाते हैं, you will understand your inheritance in Christ. और मसीह में आपकी मिरास को आप समझ जाएंगे. Let me tell you one thing. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. There is a fighting is going on between you and the devil. और आपके और शैतान के बीच में युद्ध शुरू है. You know why the fighting? आप जानते हैं युद्ध क्यों शुरू है?
It's about the authority. और ये अधिकार की लड़ाई है। Who will have the authority? ये अधिकार कौन रखेगा अपने पास? Its battle between you and the devil is about the authority. और आपके और शैतान के बीच में जो लड़ाई शुरू है वो अधिकार की लड़ाई है। He said in his heart, वो अपने हृदय में कहता the है, devil said in his heart, और शैतान ने अपने हृदय में कहा, I will make my throne above the throne of God. कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखूंगा। And he was kicked out from the heaven. और उसके वजह से उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया He गया was thrown down on this earth. और इस धरती पर उसको फेंक दिया गया। But let me tell you one thing. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Christ has paid a full price for you and me to walk in that authority. और मसीह यीशु ने आप उस अधिकार में चलने के लिए पूरी कीमत को उसने चुका दिया है। Amen. आमीन। Jesus has paid a price on the cross यीशु मसीह ने क्रूस पर उस कीमत को चुका दिया है for you and me आपके और मेरे लिए, to walk in that authority. कि हम उस अधिकार में चल सके। Can you look at your neighbor and tell your neighbor, आपके पड़ोसी को देखकर आप बता सकते हैं, the price has been paid for you to walk in authority. और तुमको अधिकार में चलने के लिए उस कीमत को चुका दिया गया है। Look at your neighbor, tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बताइए, the price has been paid for you आपके लिए कीमत चुका दी गई है, for your true identity, आपकी सच्ची पहचान के लिए, for your victorious life, आपके जयवंत जीवन के लिए, for your blessing, आपके आशीष के लिए, for your authority. आपके अधिकार के लिए। Amen. आमीन। The price has already paid. और जो कीमत है वो चुका दी गई है। The price has paid for the forgiveness of your sin. आपके पापों की क्षमा के लिए कीमत चुका दी गई है। Amen. आमीन। And if you want to understand what the Christ has given to you, और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मसीह ने आपको क्या दे दिया है, if you want to understand this, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, you need to understand first about the Genesis. और सबसे पहले आपको उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। You need to understand about what happened in the Genesis chapter 1, 2 and 3. आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्पत्ति के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में क्या हुआ था। Because क्योंकि before the Adam was fallen in sin, और आदम पाप में गिरने से पहले, as he was living in the Garden of Eden, और जैसे वो अदन की वाटिका में जी रहा था, that is the perfect will of God for every humankind. वो हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। Amen. आमीन। That's the perfect will of God. और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी। You will enjoy this topic today. और आप इस टॉपिक का जरूर आप आनंद उठाएंगे। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because when I was meditating on this, क्योंकि जब मैं इस पर मनन कर रहा था, when I was reading the Genesis, और जब मैं उत्पत्ति पढ़ रहा था, why God created Adam? परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? What was the purpose of the Lord? और परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? And everything same you can see the life of Jesus, he came to restore it back. और उसी सेम बात को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह उसी बात को फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने आया। Amen. आमीन। What God speaks, what God has a plan, it is forever. और जो भी परमेश्वर बोलता है या प्रभु की योजना जो होती है वो हमेशा के लिए होती है। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है in Numbers chapter 23 verse 19, और गिनती की किताब 23 अध्याय और 19 पद में it is written there, वहां पर ये लिखा है, God is not a man who lies. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। God is unchanging God. परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। What he decides, it is forever. जो वो निर्णय लेता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। What he speaks in his word, जो अपने वचन में वो बोलता है it is unchanging. वो न बदलने वाला It है, is forever. वो हमेशा के लिए है। It means उसका अर्थ होता है what God decided in Genesis for every human, that is the will of God. और परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो मनुष्य के लिए निर्णय लिया था वही परमेश्वर के हर एक मनुष्य जाति के लिए इच्छा है। Amen. आमीन। And Jesus came to restore it back. और यीशु मसीह उसी बात को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए आया। Hallelujah. हालेलुया। You will understand that. आप इस बात को समझ जाएंगे। So Genesis chapter 1 and 2. और इसलिए उत्पत्ति की किताब इसका पहला और दूसरा अध्याय, If you read very carefully, अगर आप बड़े ध्यान से इसको पढ़े, that is the perfect will of God for everyone. और हर एक व्यक्ति के लिए ये वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। The Eden Garden अदन की वाटिका में, is the Eden Garden अदन की वाटिका is the plan of God for entire humankind. अब सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। It is a perfect plan of God. और वो परमेश्वर की सिद्ध योजना है। It is for every humankind. वो हर एक मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। Before Adam was fallen in sin, और आदम पाप में गिरने से पहले how he was, वो कैसा था?
how he was living. वो कैसा जी रहा था. Not even for one thing he was scratching his head, what will be my tomorrow? और एक बात के लिए भी अपना सिर नहीं खुजा रहा था कि कल पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है. He was not worried for anything. वो किसी भी बात की वो चिंता नहीं करता था. What I will eat, मैं क्या खाऊंगा, where I am going to go, मैं कहाँ जाऊंगा, what I am going to drink. मैं क्या पीऊंगा. He was not worried for anything. उसकी वो कोई चिंता नहीं करता था. You know why? आप जानते क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानता था, the one who is a creator, he is with him. वो जानता था कि जो सृष्टि करता है वो उसके साथ में है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Can you shout little louder? Hallelujah. जोर से बोल सकते हैं, हालेलुया. The Eden Garden अदन की वाटिका is a perfect plan of God for every man. हर एक व्यक्ति के लिए वो परमेश्वर की परिपूर्ण और सिद्ध इच्छा है. And Jesus came और यीशु आए to establish that plan of God, परमेश्वर की उस योजना को हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए, which was in the Genesis. जो उत्पत्ति में था. Because क्योंकि the first man was created in eternity. क्योंकि पहला जो मनुष्य था वो अनंत काल में उसकी उत्पत्ति हुई थी. Let me tell you one thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. Bible says in John chapter 3:16. और यूहन्ना 3:16 में बाइबल बताती है. What Bible says? बाइबल क्या बताती है? God loved so much to this world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, so that those who may believe on Him, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे they will not be perished, but they will have the eternal life. कि वो नाश न हो परंतु उन्हें अनंत जीवन मिल जाए. What is the eternal life? अनंत जीवन क्या है? What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? The life of God. वो है परमेश्वर का जीवन. The Jesus brought in our life, जो यीशु मसीह हमारे जीवन में लाया, that is the life of God in us. वो परमेश्वर का जीवन है जो वो हमें देता है. That's the Zoe life. वो जोए जीवन It's है. a God kind of life. वो परमेश्वर के जैसा जीवन है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. So if you understand very carefully about the Genesis, अगर आप उत्पत्ति को बहुत ध्यान से आप समझ जाते हैं, you will understand what Jesus has regained for you and me. आप समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक बार आपके लिए क्या प्राप्त किया है. Amen. आमेन. Genesis chapter 1, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय verse 1. और पहला वचन What it says? क्या कहता है वो वचन? In the beginning God created. और वो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने निर्माण किया. Amen. आमेन. In the beginning God created heaven and the earth. परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की. Meaning, अर्थ उसका ये है, this one word is saying God created. और ये जो वचन है कहता है कि परमेश्वर ने निर्माण किया. The verse 2 says, और दूसरा जो वचन है, earth was without form and void. और पृथ्वी जो थी वो बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी. There was a darkness over the earth. और पृथ्वी के ऊपर में अंधियारा था. And the Spirit of the Lord was hovering over the surface of the water. और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर में मंडरा रहा था. Amen. आमेन. That's the verse 2 says. और ये है दूसरा वचन जो बताता है, Meaning, जिसका अर्थ ये है, the first word says, पहला वचन ये बताता है God created. परमेश्वर ने निर्माण किया. Second word says, दूसरा वचन बताता He है is re-establishing what He has created. और जो उसने निर्माण किया है उसको फिर से स्थापित कर रहा है. Meaning, अर्थ ये है, there is a something happening between verse 1 and 2. और इसका अर्थ ये है कि पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ हुआ था. Because the first word says, क्योंकि पहला वचन ये कहता है, what it says? क्या कहता है? In the beginning God created heaven and the earth. कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की. Second word says, दूसरा वचन कहता है, it is without form and void. और वो उसमें आकार नहीं है और वो सुनसान पड़ा हुआ है. Meaning, अर्थ ये है, darkness is there. अंधकार वहां पर है. It is look like a west. The earth is look like a west. ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट के समान, कचरे के समान पड़ी हुई है. It's look like purposeless. ऐसा लग रहा है कि उस पृथ्वी में कोई भी उद्देश्य नहीं है. There is a darkness is there. और वहां पर अंधेरा दिखाई देता है. Meaning, अर्थ ये है, something had happened there. अब इसका मतलब है कि वहां पर कुछ तो भी हुआ था. Something had happened there. वहां पर कुछ हुआ था. And God is reforming, re-establishing that earth, what He is created. और जिस पृथ्वी को उसने बनाया था उस पृथ्वी को वो फिर से बना रहा है, फिर से उसको स्थापित कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. I need your volume to increase. This volume, brother. मेरी आवाज बढ़ा देना ट्रांसलेटर की. Yeah. Increase his volume in the word. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Because your voice is getting lower than yours.
Hallelujah. हालेलुया। So what happened in verse 1? तो पहले पद में क्या हुआ? God created. परमेश्वर ने निर्माण किया, उत्पन्न किया। Verse 2, दूसरे वचन में rearranging the earth what He's created. जो उसने पृथ्वी बनाई थी उसको फिर से वो दोबारा बना रहा है। If you see in Isaiah chapter 45, और यशायाह 45 अध्याय में अगर हम जाएं, verse 18, 18 पद में it is written there. वहाँ पर ऐसा लिखा है। You know what it is written? हम जानते हैं वहाँ क्या लिखा है? The Bible says, बाइबल कहती है, for thus says the Lord who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it. क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है और उसी ने उसको स्थिर भी किया। Amen. आमीन। Who did not created it in vain. उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। Amen. आमीन। What it says? वो क्या कहता है? God created earth. परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। Why God created earth? परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों बनाया? For establishment. ताकि वहां पर कोई लोग रह सके, स्थापित होने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Why God created earth? परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों बनाया? It is for establishment. ताकि वहां पर स्थापित हो जाए। Amen. आमीन। It is not created to be in vain. और उसको बस व्यर्थ के लिए उसने नहीं बनाया। It is not created to be wide. और उसको खाली रहने के लिए नहीं बनाया। It's not created to be dark. उसको अंधेरे में रहने के लिए नहीं बनाया। It's not created to be purposeless. और उद्देश्यहीन रहने के लिए नहीं बनाया। It is created for establishment. ताकि वो उसके लिए बना कि वो स्थिर हो जाए। Let me tell you one thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। God has not created your life to be in a vain. God has created your life for establishment. परमेश्वर ने आपके जीवन को खाली रहने के लिए व्यर्थ नहीं बनाया है, लेकिन आपके जीवन को स्थिर रखने के लिए बनाया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Your life is created for establishment. परमेश्वर ने आपके जीवन को इसलिए बनाया कि उसमें आप स्थिर हो जाए। Your life is having a meaning in your life. आपके जीवन में कोई अर्थ है। Your life is having a purpose in your life. आपके जीवन में उद्देश्य है। God rejoices over you. परमेश्वर आप पर आनंदित होते हैं। The Bible says, बाइबल कहती है, God rejoices over you. परमेश्वर आप पर आनंद होते हैं, You are मगन so होते हैं। precious to God. आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। Your life is not created to be in a vain. परमेश्वर ने आपके जीवन को खाली और व्यर्थ रहने के लिए नहीं बनाया In the है। name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I decree and declare over your life आपके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ that your life and your family and your ministry will be established in Jesus' name. आपके यीशु मसीह के नाम से आपका घर, आपका परिवार, आपकी सेवकाई वो स्थिर हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Understand one thing. इस बात को आप समझ लीजिए। When God created the earth, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, it is not created to be a void. वो खाली रहने के लिए नहीं बनाया It not been created to be dark. और वो अंधेरे में रहने के लिए नहीं बनाया। Meaning, इसका अर्थ ये it है is created for establishment. वो स्थिर रहने के लिए बनाई गई है। If the verse 2 is saying it is without form and void, और जब दूसरा वचन कहता है कि उसमें कोई आकार नहीं है, बेडौल है and the darkness is there, और उसके ऊपर में अंधियारा है, meaning अर्थ ये है something is happening between verse 1 and 2. और पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। If you understand what is happened there, अगर आप वहाँ समझ जाए कि वहाँ पर क्या हुआ, you will understand entire scenario. फिर आपको पूरा चित्र समझ में आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And what is happened there in between verse 1 and 2? और वचन 1 और 2 में के बीच में क्या हुआ? Luke chapter 10 verse 18 says, लूका 10:18 कहता है, it is written there, और बाइबल बताती है, if you read very carefully, अगर आप बड़े ध्यान से पढ़े, Jesus said, यीशु ने कहा, I saw the Satan is fallen like a lightning. और मैं देखा मैं शैतान को बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था। Can you read the word? लूका रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय और इसका 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है कि उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। Hallelujah. हालेलुया। What happened there? वहां पर क्या हुआ?
the devil, the Satan, the Lucifer is fallen like a lightning. और वहां पर शैतान जो है, जो लूसीफर है, वो बिजली के समान गिर गया था। If you see in Revelation chapter 12, अगर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को हम पढ़े, verse 4 onwards till 9, और 4 वचन से लेकर 9 वचन it is तक written there, वहां पर ये लिखा है Satan is cast down to this earth. कि शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। Let me tell you one thing. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, In between of verse 1 and 2, और वचन 1 और 2 के बीच में there was a fall of Lucifer. वहां पर शैतान जो था वो गिर गया था। Hallelujah. हालेलुया। If you see in Isaiah chapter 14, और यशायाह 14वें अध्याय को अगर हम देखते हैं, verse 12 to 17, 12 से लेकर 17 तक, it is written there, वहां पर ये लिखा है, it is the fall of Lucifer. वहां पर लूसीफर का गिरने के बारे में लिखा गया है। And if you see here, यहाँ पर हम देखते हैं, the verse 13 says, 13 वचन ये कहता है, for you have said in your heart, तू मन में कहता तो था, I will ascend unto the heaven, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will exalt my throne above the throne, above the stars of God. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। And when he said that, और जब उसने वो कहा, verse 14 said, 14वां वचन कहता I है, will ascend above the heights of the clouds, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, I will be like the Most High. मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Yet you shall be brought down to Shiloh, to the lowest depth of the pit. परंतु तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Devil, the Lucifer, he said in his heart, और लूसीफर ने, शैतान ने अपने मन में कहा I will be like a Most High. कि मैं परम प्रधान के जैसा बन जाऊंगा। I want the authority there. मुझे वहां पर अधिकार चाहिए, I want the authority there. मुझे वहां पर अधिकार He चाहिए। is saying in his heart, वो अपने दिल में, मन में कह रहा he is है, saying, वो कह रहा है, as I am ruling here, जैसा मैं यहाँ पे राज्य कर रहा I हूँ, want the authority there. मुझे वहां पर भी अधिकार He is चाहिए। saying, I want the authority in both realms. वो कहता है कि मुझे दोनों स्तरों पर मुझे अधिकार चाहिए। He said, I will ascend in heaven. वो कहता है कि मैं स्वर्ग पे ऊपर चढ़ I जाऊंगा, will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। God looked at him और परमेश्वर ने उसकी ओर देखा and he said, और कहा, you want to make the throne above throne of mine? तो वो कहता है कि मैं, परमेश्वर ने कहा कि मेरे सिंहासन पर तो अपना सिंहासन बनाना चाहता है, I will throw you down in the pit. और मैं तुझे नीचे गड्ढे में मैं तुझे गिरा दूंगा। What the devil said? शैतान ने क्या कहा? I want the authority. उसने कहा कि मुझे अधिकार चाहिए, I want that chair. मुझे वो कुर्सी चाहिए, I want the rulership. मुझे वो राज्य करने की ताकत I चाहिए, want the dominion and power. मुझे वहां पर सामर्थ्य चाहिए और अधिकार चाहिए। But God striped him out from his position. लेकिन परमेश्वर ने उसके अधिकार से उसको नीचे गिरा दिया, He was striped him out. और उसने उसको नीचे खींच लिया। God took him the authority from him and thrown down on this earth. परमेश्वर ने उसके ऊपर से अधिकार को ले लिया और उसको धरती पे नीचे गिरा दिया। Hallelujah. हालेलुया। And after he cast out to the earth और जब धरती पर गिरा दिया गया and was ruling the earth, he wants the authority over the both realm. और शैतान को दोनों की स्तरों पर उसको अधिकार चाहिए था। The battle is here only. और यहीं पर वो लड़ाई शुरू है। Who will have the authority? अधिकार किसके पास होगा? The devil says, शैतान कहता है, that's why the Bible says in Ephesians chapter 6, और इफिसियों के पत्र के 6वें अध्याय में बाइबल कहती है, our battle is with the principalities. हमारे जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो अधिकारियों के साथ में है। There are the principalities. और वहां पे जो अधिकारी है उनके बीच में। Why the rulers? और क्यों राज्य करने वालों के बीच में? Because they are taking the cities. क्योंकि वो शहरों को ले रहे हैं। And why is the church? और क्यों कलीसिया? To take back the city from the hand of the devil and to bring back to God. ताकि कलीसिया शहरों को शैतान के हाथ से छीनकर फिर से परमेश्वर के पास में लेकर आ जाए। Church is the ultimate authority. कलीसिया के पास में अंतिम अधिकार है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So battle between you and the devil is about the authority. और आपके और शैतान के बीच में जो लड़ाई है वो अधिकार की लड़ाई है। Amen. आमेन। And if you see in the book of Jeremiah, और अगर आप यिर्मयाह की किताब में देखें, chapter 4, 4थे अध्याय में verse 23 onwards, और 23 वचन से आगे, it is written there. वहां पर ये लिखा है, What it is written? क्या लिखा है पढ़ेंगे। I beheld the earth and indeed it was without form and void. मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सुनी और सुनसान पड़ी थी। And the heavens they had no light. और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। I beheld the mountains मैंने पहाड़ों को देखा, and indeed they trembled.
वे हिल रहे थे and all the hills moved back and forth. और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रहे थे। I beheld, and indeed there was no man, and all the birds of the heaven had fled. फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। Verse 26 says, 26 वचन में कहता है, I beheld, and indeed the fruitful land was a wilderness, and all its cities were broken down at the presence of the Lord by his anger. फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। The earth became it became like a void. It became a formless. और जो पृथ्वी थी वो खाली हो चुकी थी और बेडौल हो चुकी थी। There was no life. वहाँ पे कोई जीवन नहीं था। Why this happened? ऐसा क्यों हुआ? It happened because of out of God's anger. ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के कारण। Hallelujah. Hallelujah. It happened because of God's anger. परमेश्वर के क्रोध के कारण ये हुआ। Meaning, अर्थ ये है, when the devil said in his heart, जब शैतान ने अपने मन में कहा, when the Lucifer said in his heart, जब लूसीफर ने अपने मन में कहा, I will make my throne above the throne of God, मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा। he was stripped out from his place, उसके जगह से उसको नीचे लाया गया, and he is thrown down, उसको नीचे गिरा दिया गया, and because of that, और उसके कारण there is a judgment came over the earth. और पृथ्वी पर न्याय आ गया। What the prophet Jeremiah is saying? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता क्या कह रहा है? I saw the earth. मैंने पृथ्वी को देखा। It's a void. It's formless. There is a darkness. वो खाली है, उसमें कोई आकार नहीं है और वहाँ पर अंधियारा है। Can you see that thing in the Genesis chapter 1 and 2? क्या इसी बात को आप उत्पत्ति 1 और 2 में देखते हैं? Meaning, अर्थ ये है, the condition of the earth is like that because of God's anger, because of God's judgment. और पृथ्वी की ये परिस्थिति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आ गया था। Hallelujah. हालेलुया। Why the judgment of God came? परमेश्वर का न्याय क्यों आया? Because of the rebellious nature of Lucifer. और लूसीफर ने जो बलवा किया था उसके कारण। The fall of Lucifer, जो शैतान था लूसीफर का गिरना, it brought the judgment of God over the earth. पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय को लेकर आया। God stripped him out of his authority. परमेश्वर ने उसके अधिकार को उससे छीन लिया। God took the rulership from him. परमेश्वर ने उससे उस राज्य करने की ताकत को ले लिया। And he was thrown on the earth. और उसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया। And what was under him, there was a chaos happened. और जब वो गिरा तो वहाँ पे पूरी गड़बड़ी आ गई। God withdraw the light and the darkness came. परमेश्वर ने ज्योति को ले लिया और अंधियारा आ गया। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Everything between God, Satan and humanity, और सब कुछ परमेश्वर और शैतान और मनुष्य के बीच में जो है, it's about who will have the authority over the earth. उसका सब बातों के निचोड़ यह है कि कौन पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। And the church has the ultimate authority. और कलीसिया के पास अंतिम अधिकार है। Hallelujah. हालेलुया। You need to stand in your position today. आज आपको आपके उस पद पर, उस स्थान पर खड़े हो जाना You है। are going to loot the loot of the enemies. और शत्रु की उस लूट को लूट लेना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You are going to empty the hell and you are going to fill the heaven. आप नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भर देंगे। There is going to be a revival. एक बड़ी बेदारी आने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You will see the blessings. आप आशीषों को देखेंगे। Understand one thing. एक बात को आप समझ जाइए। Can I tell you the truth? मैं आपको एक सत्य बताऊं। Can you open Ezekiel chapter 28? और एहेजकेल की किताब इसका 28 अध्याय हम लोग निकालेंगे verse 13. और इसका 13 वचन। I just want you to first read and then I'll explain the scripture. और हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एहेजकेल की किताब इसका 28 अध्याय Verse 12 onwards read. और हम लोग 12 वचन से 12. 12 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। एहेजकेल 38 अध्याय 12 से आगे। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसके धर्म उसे न बचा सकेगा। आप सॉरी Ezekiel 28. एहेजकेल की किताब इसका 28 अध्याय और 12 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे। Okay, understand here now. यहाँ पर आप इस बात को समझिए। There is a lamentation about the king of Tyre.
और सोर के राजा के विषय में यहाँ पर विलाप का गीत है। The king means और राजा का अर्थ है it's a ruler. जो राज्य करता है। Yes or no? हाँ या ना? The one who is having a dominion. ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अधिकार The है, one who is having a kingdom. जिसके पास में राज्य है। And the prophet is saying, और भविष्यवक्ता ये कह रहा है lamentation about the king of Tyre. और सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत। About whom this scripture is written? किसके विषय में ये वचन लिखा गया है? The scriptures are written about Lucifer. ये जो वचन है वो लूसीफर के बारे में लिखा गया है। But what he is saying there, लेकिन वहां पर वो क्या बोल रहे he हैं? says a lamentation for the king of Tyre. लेकिन सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत ऐसा लिखा है, Meaning, जिसका अर्थ ये he is है, speaking about a ruler. जिसका अर्थ है कि वो एक राज्य करने वाले के बारे में लिखा गया है। We don't know who is that ruler. हम नहीं जानते कि राज्य करने वाला कौन है, But लेकिन if you read very carefully, अगर आप उसको बड़े ध्यान से that देखें, ruler was in the Garden of Eden. और वो जो राज्य करने वाला था वो अदन के वाटिका में था। Can you read? हम उसको पढ़ेंगे। Make very clearly understand this. He is speaking about a ruler. ध्यान दीजिए कि वो एक राज्य करने वाले के बारे में बोल रहा है। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहराव थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। About whom this scripture is speaking? इस शास्त्र भाग में किसके बारे में लिखा गया है? The Ezekiel is speaking about Lucifer. यहेजकेल जो है वो लूसीफर के बारे में बात कर रहे हैं। And if you see one word is here, एक वचन यहाँ पर है। I just want to tell you that. उस शब्दों को हम लोग देखेंगे। You know what it says? देखिए वो क्या लिखा है। Verse 14, can you read? 14वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। 17 पद पढ़ेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। Where is throne? उसका सियासत कहाँ पर है? No, where is thrown down? वो कहाँ पर फेंका गया? On this earth. पृथ्वी पर, Where he was ruling. जहाँ पर वो राज्य कर रहा था। Yes or no? हाँ या ना? That's what it is written in Ezekiel 28. और यहेजकेल 28 में ये लिखा गया है। It is clear? वो क्लियर है? Understand one thing now. आप एक बात को अभी समझ जाइए। Before God was creating Adam, परमेश्वर आदम को बनाने से पहले, according to this scripture, इस वचन के अनुसार the Lucifer लूसीफर जो है was having a responsibility before he was a rebellion against God. और परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के पहले लूसीफर को जिम्मेदारी दी गई थी। Responsibility over this earth. और ये जो जिम्मेदारी थी ये इस पृथ्वी के ऊपर में थी। To bring the heavenly kingdom on this earth.
कि वो परमेश्वर का जो राज्य है, स्वर्ग का राज्य जो है, वो उस पृथ्वी पर वो लेकर आए। In another words, दूसरे अर्थ से heavenly order. कि ऐसा कि जैसे कि स्वर्गीय जो ऑर्डर है, क्रम है, उसको लेकर आए, Or the heavenly culture. या फिर स्वर्गीय संस्कृति को यहाँ पर लेकर आए। He was the overseeing the extension of the kingdom of heaven over the earth. और परमेश्वर के राज्य का जो पृथ्वी पर है उसके ऊपर में वो ध्यान दे रहा था, Before he was a rebellion. और बलवा करने के पहले। But लेकिन when he rebelled against God, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, the place where he was ruling, जिस स्थान पर वो राज्य कर रहा था, there he was thrown down. वहीं पर उसको नीचे फेंक दिया गया। That's why, इसीलिए which was under him, जो उसके नीचे था, the chaos came there. और वहां पर गड़बड़ी आ गई, The judgment of God came there. परमेश्वर का न्याय वहां पर आ गया। So now, और इसलिए अब come back to the Genesis chapter 1 verse 2. आप फिर से एक बार उत्पत्ति इसके पहले अध्याय के दूसरे पद में आ The जाइए earth is without form and void. कि पृथ्वी जो है वो बेडौल है और सुनसान पड़ी है। Do you understand why it was void, why it was formless and dark? क्या आप समझ गए कि वो क्यों बिना आकार के और क्यों अंधेरे से भर गई थी? Because क्योंकि it brought the judgment of God because of the fall of Lucifer. और शैतान के गिरने के कारण परमेश्वर का राज्य उसके ऊपर में आ गया। शैतान के गिरने के कारण परमेश्वर The judgment of God हाँ came over the earth. यस The fall of Lucifer brought the judgment of God over this earth. और शैतान के गिरने के कारण परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आ गया था। Amen. हमें Another thing I'll tell you. एक और बात मैं यहाँ पर बताऊंगा, Now this truth will shock you. और ये जो सत्य है आपको हिला देगा। Hallelujah. हालेलुया। You want to hear? आप सुनना चाहते हैं? Now God started to create the earth. अब Reform the earth. परमेश्वर फिर से एक बार पृथ्वी को बनाना चाह रहे हैं। He created a light. उसने ये ज्योति बनाई, He saw the light, the Bible says. और बाइबल कहती है कि उसने देखा लाइट को, ज्योति को देखा। He saw the light. उसने देखा, उसने ज्योति को देखा। When he saw the light, जब उसने ज्योति को देखा, what God said? परमेश्वर ने क्या कहा? It is good. कि ये अच्छा है। He created the star and moon. उसने सितारों को बनाया और चंद्र को बनाया। God said, परमेश्वर ने कहा it is good. ये अच्छा है। He created animals. उसने जानवरों को बनाया, He looked at, उसने देखा, he said it is good. उसने कहा कि ये बहुत अच्छा, ये अच्छा है। You know why God said it is good? आप पता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा है? Because क्योंकि after reforming the earth, पृथ्वी को फिर से एक बार बनाने के बाद God is watching. परमेश्वर देख रहे हैं, Is there any influence of Lucifer is any more over this creation now? वो ये देख रहे हैं कि इस सृष्टि के ऊपर में क्या शैतान का अभी भी कोई प्रभाव बाकी है क्या? God saw there is no influence. परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। Then God said it is good. तब परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then God, after creating the earth, और पृथ्वी को बनाने के बाद now this earth need a ruler. अब इस पृथ्वी को एक राज्य करने वाले की जरूरत थी, That's why God said, और इसलिए परमेश्वर ने कहा let us make a man in our own image and likeness. कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। After creating that man, और उस व्यक्ति को बनाने, उस मनुष्य को बनाने के you बाद know what the Bible says? अब जानते हैं बाइबल क्या कहती है? God said it is too good. परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। You know why? अब जानते हैं क्यों? Because क्योंकि there is no influence of Lucifer over this man. कि इस मनुष्य के ऊपर में शैतान का कोई भी प्रभाव नहीं है। Not only that, उतना ही नहीं, this man is having my image and likeness. इस मनुष्य के ऊपर में मेरा इमेज है, मेरी स्वरूप है, मेरी समानता है। He is exactly like me. वो बिल्कुल मेरे समान है। As I am ruling in the heaven, जैसे मैं स्वर्ग में राज्य कर रहा this हूँ, man will rule over this earth. ये जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। So now, और इसलिए अब there is no evil thing in him. उसके अंदर में कोई बुराई नहीं He है। has my nature. मेरा स्वभाव उसके अंदर में He है। has my likeness. मैं जैसा हूँ वैसा ही वो है। He has my wisdom. मेरी बुद्धि उसमें है। As I am walking, this man is walking. जैसा मैं चलता हूँ वैसा ये व्यक्ति चलेगा। As I am speaking, he is speaking. और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा व्यक्ति बोलेगा। He is exactly like me. जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है। That's why God said, और इसलिए बाइबल परमेश्वर ने कहा it is too good. ये बहुत अच्छा है।
Hallelujah. हालेलुया। Do you know when God looks at you, ये आप जानते हैं जब परमेश्वर आपको देखते हैं He says, वो कहते हैं it is too good. ये बहुत अच्छा है। You know why? आप जानते हैं क्यों? When you are washed by the blood of Jesus, जब यीशु के लहू से आप धुल चुके हैं, all the powers of darkness, सारे अंधकार की शक्तियां जो it है has lost the power over you. आपके ऊपर में वो उनके सारे सामर्थ टूट चुकी है। Now, अब you don't have any influence of the kingdom of darkness over you. You are already in the kingdom of His Son Jesus. आपके ऊपर में शैतान का कोई राज्य नहीं है, आप उसके पुत्र के राज्य में आ चुके हैं। If you see in Colossians chapter 1, अगर आप कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय देखते हैं, verse 13 says, 13 वचन ये कहता you है, know what he says? आप जानते हैं वचन क्या कहता He है? has delivered you. उसने आपको स्वतंत्र किया है, He has delivered you. उसने आपको मुक्त किया है, छुड़ाया है. छुड़ाया है From the kingdom of darkness. शैतान के राज्य से, From the kingdom of darkness. अंधकार के राज्य से He has delivered you. उसने तुमको छुड़ा लिया By है, His own blood. अपने खुद के लहू से He has delivered you. उसने तुमको छुड़ा लिया है, And He has transformed you in the kingdom of His Son, beloved Jesus. और उसने आपको उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में लेकर आ गया है। Where are you now? आप कहाँ पर है? Physically, शारीरिक रूप से you are in the Nagpur. आप नागपुर में है, But spiritually, लेकिन आत्मिक रूप से you are in the kingdom of Jesus. आप यीशु मसीह के राज्य में है। That is your position to rule and reign. ये आपका पद है जहाँ से आप राज्य करेंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Another thing I'll tell you. एक और बात मैं आपको बताऊंगा। So after creating everything, सब कुछ बनाने के बाद God saw it. परमेश्वर ने उसको देखा, There is no influence of Lucifer anymore. उसके ऊपर लूसीफर का कोई प्रभाव नहीं है। God said, परमेश्वर ने कहा it is too good. ये बहुत अच्छा It है, is too good. ये बहुत अच्छा When है। God created a man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, what the first blessing God gave? पहले आशीष कौन सी जो परमेश्वर ने दिया? God gave him the dominion. परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। Hallelujah. हालेलुया। What Christ has given you. और यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है? You know, after the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद Matthew chapter 28, मत्ती इसका 28 अध्याय, what Jesus said, यीशु मसीह ने क्या कहा? all authority सारा अधिकार on this earth, इस पृथ्वी पर, in the heaven, स्वर्ग में is given to me. मुझे दिया गया I है, give to you. मैं तुमको देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Do you see that both things are same? आप देख रहे हैं कि दोनों बातें एक जैसी है। Why God created Adam? परमेश्वर ने क्यों आदम को बनाया? In His image and likeness, उसके स्वरूप उसकी समानता में, so that इसलिए as God is ruling on this earth, on the heaven, जैसा परमेश्वर स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं, Adam should rule on this earth. आदम ने इस पृथ्वी पर राज्य करना है। As the kingdom of God is in the heaven, जैसे परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, that kingdom should come on this earth. वही राज्य इस धरती पर आ जाए। That's why इसीलिए when Jesus taught the prayer to His disciples, जब यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया, what's the Lord's prayer? प्रभु की प्रार्थना क्या है? When you pray, जब आप प्रार्थना करते you हैं, pray there, let your kingdom come as it is in the आप heaven. कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि जैसा परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में, वैसे पृथ्वी पर उसका राज्य आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Why God created a first man? परमेश्वर ने पहले मनुष्य को क्यों बनाया? He created a first man परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया to bring the heavenly order, heavenly culture on this earth. ताकि स्वर्गीय संस्कृति को वो धरती पर लेकर आए। Amen. आमीन। To bring the heavenly kingdom on this earth. स्वर्गीय राज्य को इस पृथ्वी पर वो लेकर आए। When Jesus came, जब यीशु आया, He said to His disciples, उसने अपने चेलों से कहा, when you want to pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, pray in this manner. इस प्रकार से प्रार्थना करना, Our Father who is in heaven, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Let your kingdom come as it is in heaven. तेरा राज्य यहाँ पर आए जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है। Hallelujah. हालेलुया। Another thing I want to tell you. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, when God created a first man, Adam, परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य आदम को बनाया, He has given him the rulership. उसने उसको राज्य करने का अधिकार He दिया, has given him the dominion. उसको अधिकार दिया। Why? क्यों? To bring the heavenly order on this earth. ताकि इस पृथ्वी पर स्वर्गीय क्रम को लेकर आए। When Jesus came, जब यीशु आए, what the first word He said? पहला वचन, पहला शब्द उन्होंने क्या He बोला? said, the kingdom of God is at hand. उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है।
Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपको बताना चाहता What हूँ, the first man lost, जो पहले मनुष्य ने खो दिया था, we regain it by second Adam, Jesus Christ. और दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा हम उसको दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God created a first man. परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, You know, God created first man out of the dust. और पहले मनुष्य को उसने मिट्टी से बनाया, He created a statue. और उसने एक पुतला बना दिया। And the Bible says, फिर बाइबल कहती है, God breathed in his nostril. परमेश्वर ने अपने सांस को उसके नथुनों में फूंक दिया। When God said, कि परमेश्वर ने कहा, let's make a man in our own image and likeness. परमेश्वर ने जब कहा था कि मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, Imagine या कल्पना कीजिए, or think, how can this mud will have the likeness and image of God? सोचने की बात है कि ये मिट्टी में परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता कैसे आएगी? Yes or no? हाँ या ना? The Bible says, बाइबल कहती है, God breathed in his nostril. परमेश्वर ने उसके नथुनों में अपनी सांस को फूंक दिया। The breath in Hebrew means और हिब्रू में जो सांस है उसका अर्थ होता है ruach. रुआक शब्द है। Ruach means रुआक का अर्थ होता है Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा। God said, परमेश्वर ने कहा, I will breathe my spirit in him, उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा उसके अंदर में फूंकूंगा, and that my spirit और वो मेरी जो आत्मा है will bring my image and likeness in him. और उसके अंदर में मेरे स्वरूप और मेरे समानता को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। It means उसका अर्थ ये होता the है, Spirit of the Lord परमेश्वर का जो आत्मा है made Adam exactly to look like God. और आदम को उसने ऐसा बना दिया कि वो परमेश्वर के जैसा ही वो दिखता था। Hallelujah. हालेलुया। If you see in Job chapter 33, और अय्यूब इसका 33 अध्याय को अगर हम देखें verse 4, और चौथे पद में if you read there, अगर हम वहां पे पढ़ते the हैं, Job said, अय्यूब कहते हैं, the breath of the Almighty. और परमेश्वर की जो सांस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांस जो है, Can you read? आप पढ़ेंगे अय्यूब की किताब इसका 33 अध्याय Verse 4 says, चौथा वचन कहता है, it says, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me the life. मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। Meaning what? उसका अर्थ क्या है? When God breathed in him, परमेश्वर ने जब उसने अपनी सांस को फूंका, Bible says, बाइबल कहती है, Adam became a living soul. आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। Meaning, अर्थ यह है, he became exactly like God. वो जो परमेश्वर के जैसा ही बन गया। Hallelujah. हालेलुया। What is a breath? और ये सांस क्या है? That is a ruach. वो है रुआक। Ruach means रुआक का अर्थ होता है Spirit of the Lord. परमेश्वर के सांस Spirit of the Lord. और परमेश्वर की आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Ruach means रुआक का अर्थ होता है Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा। So what happened there? और वहां पर क्या हो गया? When God is creating the Adam, परमेश्वर जब आदम को बना रहा है, He breathed His Spirit in him. उसने अपनी आत्मा को उसके अंदर में फूंक दिया। After the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, if you see in John chapter 20, और यूहन्ना इसके बाद से 20 अध्याय में verse 22, और वचन 22 if में you read there, वहां पर हम लोग पढ़ते when the हैं, disciples were in the one room, और सब चेले एक रूम में थे, Jesus entered in that room after the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस कमरे में प्रवेश किया and He said, और उसने कहा, peace unto you. और तुमको शांति मिले। Right after that, Jesus said, उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? Bible says He breathed on them. और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर अपनी आत्मा को या सांस को भेजा। The Bible says there, बाइबल वहां पर ये कहती है, He breathed on them. यीशु मसीह ने उसको ऊपर फूंक दिया, After breath, और जब उसने उसको ऐसा फूंक दिया, Jesus said, यीशु ने कहा, receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। You know why the Holy Spirit? हम जानते हैं क्यों पवित्र आत्मा? Because the Holy Spirit क्योंकि पवित्र आत्मा only can bring the nature and image of Christ in you. और हमारे अंदर में केवल पवित्र आत्मा ही है जो मसीह का स्वभाव ला सकता है। That's why और इसीलिए you can see about the same Peter और उसी पतरस के बारे में हम देखते हैं, who denied Jesus, जिसने यीशु का इनकार किया, who ran away. जो भाग गया था,
right after the day of Pentecost, पेंटेकोस्ट के दिन के बाद he is walking on the road, वो रोड पे चल रहा है, going to the temple. मंदिर में गया He saw the lame man who is lame from 40 years. और 40 साल से एक लंगड़े व्यक्ति को देखता है। He looked at him. उसने उसकी ओर देखा, He said, उसने कहा, silver and gold I don't have. सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, What I have, जो मेरे पास है, what I have, जो मेरे पास है, what I have, जो मेरे पास क्या है, what I have, मेरे पास क्या है, I have the nature of Christ. मेरे पास मसीह का I स्वभाव have है, Jesus. मेरे पास यीशु है। Who brought the Jesus in his life? उसके अंदर में यीशु को कौन लेकर आया? It is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Same Peter who was fearful, he was standing on the day of Pentecost and preaching to the same people. और जो पत्थर डरपोक था, जो डर गया था, वही पेंटेकोस्ट के दिन वहां पर खड़े होकर सबके सामने वचन बोलता है। Who brought this change? ये परिवर्तन उसके जीवन में किसने लाया? It is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा ने लाया। What is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? He is the breath of Almighty. वो परमेश्वर की सांस है। It is the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा है। The Holy Spirit comes in your life. पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। Why the Holy Spirit comes in your life? और पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्यों आता है? To bring the true identity of Christ in you. आपके अंदर में मसीह की सच्ची पहचान को लेकर आए। Once you understand that, जब आप इस बात को समझ जाते you हैं, will look to the sick people. जब आप बीमार को देखेंगे, You will not say, Lord, heal them. आप ये नहीं कहेंगे प्रभु उनको चंगा You कर, will say, वो आप कहेंगे silver and gold I don't have. मेरे पास सोना चांदी नहीं है, What I have, मेरे पास क्या है, what I have, मेरे पास क्या I है, have Jesus to give मेरे you. पास यीशु है तुमको देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What this world is needed. इस संसार को किस चीज की आवश्यकता है? This world is needed Jesus. इस संसार को यीशु की आवश्यकता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Another thing I want to tell you. एक और बात मैं आपको बताना चाहता When हूँ। God breathed in Adam's nostril, और जब परमेश्वर ने आदम की नथनों में सांस फूंक दी, the nature of God came in Adam. परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर में आ गया, The likeness of God came in Adam. परमेश्वर की स्वरूपता आदम के अंदर आ गई। Hallelujah. हालेलुया। The wisdom of God came to Adam. परमेश्वर की बुद्धि आदम के अंदर आ Let गई। me tell you one thing. एक बात मैं आपको It बताना is चाहता the हूँ, Holy Spirit ये पवित्र आत्मा है who brings the likeness and the image of God in you. और परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता पवित्र आत्मा आपके अंदर में लेकर आता है। He brings the Christ, the hope of glory in you. और मसीह जो हमारे आशा की महिमा है वो हमको हमारे अंदर में वो लेकर आता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Another thing I want to tell you. एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, If you see there, आप वहां पर देखते हैं Adam lost that breath और आदम ने उस सांस को खो दिया था when he was fallen in sin. जब वो पाप पे गिर गया था। When Jesus came, जब यीशु आया, first thing happened. पहली बात ये हुई, You know what happened? अब जानते क्या हुआ? When the day of Pentecost fully came, जब पेंटेकोस्ट का दिन पूर्ण रूप से आया, what happened? क्या हुआ? The same breath restored it back. और वही सांस जो है वो फिर से एक बार स्थापित हो गई। And if you allow the breath of God to move in your life, अगर आप परमेश्वर की उस सांस को अपने जीवन में कार्य करने दे, that is the Spirit of the Lord. वो है उस प्रभु की आत्मा। If you allow Him, अगर आप उसको अनुमति दे, He knows how to win the cities. वो जानता है कि कैसे देश शहरों को जीता जाए, He knows how to win the nation. वो जानता है कि राष्ट्रों को कैसे जीता He knows जाए, how to heal the sick. वो जानता है कि बीमारों को कैसे चंगा किया He knows जाए, how to bring the revival. वो जानता है कि बेदारी को कैसे लाया जाए। That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, in the last days, अंत के दिनों में I will pour out my Spirit upon all वो flesh. कहता है कि मैं सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। Your young man shall see visions. जवान लोग दर्शन देखेंगे। Meaning what? इसका अर्थ क्या है? When the Holy Spirit is poured out over all flesh, जब सारे प्राणियों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, meaning अर्थ यह है everyone will have the likeness image of God in them. और हर एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर के स्वरूप और समानता आ जाएगी। And once you stand in that likeness and image, और जब आप उस स्वरूप में, उस इमेज में आ जाते, खड़े हो जाते हैं, you know what will happen? और जानते क्या होगा? Whenever the devil will come against you, जब भी शैतान आपके विरुद्ध में आएगा, you will cast out him. आप उसको निकाल देंगे। He cannot conquer over you then. वो आप पर जीत नहीं सकता है। That is the reason ये कारण है you need to understand who you are.
आपको समझना है कि आप कौन हैं। Hallelujah. हालेलुया। Another thing I want to tell you. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। If you see in the Garden of Eden, और अदन की वाटिका में अगर आप देखें, according to Ezekiel 28, और एजकेल 28 के अनुसार, the devil, the Lucifer, was in the Garden of Eden. और लूसीफर जो था वो अदन की वाटिका में था। He lost the authority there. वहां पर उसने अपने अधिकार को खो दिया। God striped him out from his position. उसके पद से परमेश्वर ने उसको खींच लिया। Adam was a ruler now. और वहां पर आदम अभी राज्य कर रहा है। So now when the Adam is a ruler, जब आदम वहां पे राज्य कर रहा है, he wants the authority back. अब वो वापस उस अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। That's why और इसीलिए he made Adam fall into sin. उसने ऐसा कर दिया कि आदम पाप में गिर जाए। So in the Garden of Eden, और अदन की वाटिका में we see three people: 3 लोग हमको वहां पे दिखाई देते हैं, Adam, Eve, and serpent. और आदम, हवा और सांप। There was a fourth one also. और वहां पे चौथा भी था, He was a Lucifer. और वो लूसीफर था। He was there. वो वहां पे था, That's why he seduced the serpent to deceive the Eve. इसलिए उसने सांप को भरमा दिया ताकि वो हवा को भरमा दे। And when the serpent is speaking to Eve, और जब वो सांप जो है, जो हवा से बात कर रहा है, can I tell you the truth? एक सत्य मैं आपको बताऊं, I think this is my concept, okay? Don't misunderstand. और ये मेरी सोच है, आप गलतफहमी में ना रहे। This is my thinking. It's not written in the Bible. ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये मेरी सोच है, This is my personal thinking. ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। You know what I think? आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ? Many times the devil might have tried to deceive Adam. और शायद शैतान ने कई बार आदम को भरमाने की कोशिश किया होगा। He got confused. वो कंफ्यूज हो गया, It is God or Adam? ये परमेश्वर है कि आदम है, Because they both look like same. क्योंकि वो एक जैसे ही दिख रहे थे। Many times he got confused. वो कंफ्यूज हो गया कई बार, That's why he might have said, शायद इसलिए उसने ये कहा होगा, why too confused? अब कंफ्यूज क्यों रहे? There is Eve is there. वहां पे हवा तो है, Let me go to Eve. मैं हवा के पास जाता हूँ। But can I tell you the truth? लेकिन मैं एक सत्य आपको बताऊं, If you read your Bible very carefully, अगर आप अपने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़े, Eve saw the fruit. हवा ने उस फल को देखा, She took the fruit. उस फल को उसने लिया। The Bible says she ate. बाइबल कहती है कि उसने उसे खाया। First who ate? सबसे पहले किसने खाया? Eve ate. हवा ने खाया। But can I tell you the truth? लेकिन एक बात आपको बताओ, सत्य बताऊं, When the Eve ate the fruit, और जब हवा ने फल को खाया, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Their eyes were not open. उनकी आंख नहीं खुली थी। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because क्योंकि authority was not given to Eve. Authority was given to Adam. क्योंकि अधिकार जो है वो हवा को नहीं दिया गया था, अधिकार जो है वो आदम को दिया गया था। And Adam might be looking there. और आदम शायद वो सब देख रहा था। She ate. उसने खाया, Nothing happened. कुछ भी तो नहीं हुआ। Meaning, अर्थ ये है, God said, no, your eyes will open. परमेश्वर ने तो कहा था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, But her eyes is not open. लेकिन उसकी आंखें तो नहीं खुली। The Bible says she ate. बाइबल कहती है उसने खाया, हवा ने खाया, And she might have said, और उसने हवा ने शायद ये कहा होगा, see, nothing happened to me. देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, My eyes are not open. मेरी आंखें तो नहीं खुली, I am same as it is. जैसे थी वैसी मैं हूँ। And she gave to Adam. उसने फिर उस फल को आदम को दिया। Can I tell you the truth, brothers? भाइयों, एक सत्य बताऊं, What you open, that will affect your house. जो आप खोलेंगे उस पर आपके घर पर उसका असर हो जाएगा। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, the moment Adam took the fruit, जिस समय आदम ने फल को लिया, the Bible says, both of their eyes were open. उन दोनों की आंखें खुल गई। बाइबल बताती, When the Eve ate, जब हवा ने खाया, eyes were not open. आंखें नहीं खुली थी, But when the Adam ate, जब आदम ने खाया, eyes open. दोनों की आंखें खुल गई। Meaning, अर्थ ये है, brothers, भाइयों, if you are not prayerful, अगर आप प्रार्थना में नहीं है, don't blame your wife. अपने पत्नी को दोष मत दो, It will affect your house. आपके घर पर असर होगा। How you talk, आप कैसे बात how करते you हैं, live, आप कैसे जीते हैं, everything will affect your children, your house. आपके बच्चों पर, आपके घर पर उसका असर हो जाएगा। Because क्योंकि you are the head of your house. क्योंकि आपके घर के आप सिर है, You are the door of your house. आपके घर के आप दरवाजे For हैं। whatever reason you
open your door, जिस किसी कारण से दरवाजा खोलते हैं, those things will enter in your वो house. आपके घर में प्रवेश करेंगे। That's the reason. और इसलिए ये कारण है, Brothers, be a man of prayer. इसलिए भाइयों प्रार्थना का जन बन जाइए, Be a man of love. और प्रेम का जन बन Be a जाइए, man of encouragement. और उत्साह देने वाले व्यक्ति बन Be a जाइए, man of obedience to God's word. परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने वाले When बन you open जाइए। your life to the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के लिए आप अपने आप को खोल देते हैं, your house will be filled with the Holy Spirit. आपका घर पवित्र आत्मा से भर जाएगा। That's why you see in the church, और इसलिए हम कलीसिया में देखते हैं, the most number of the believers in the church is about us sisters. और कलीसिया में देखते हैं कि ज्यादा विश्वासी जो है वो महिलाएं हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Devil knows. शैतान जानता If I है, allow the head, अगर मैं सर को लेकर आऊं, if I allow the head to go to the church, अगर मैं सर को अनुमति दूं कि तो चर्च चला जा, that is the head of the house. और जो उस घर का जो सिर है, If I allow him to go into the church, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तो चर्च चला he जा, will open the door for the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के लिए अपने दरवाजे को खोल देगा। When he opens the door for the Holy और Spirit, जो पवित्र आत्मा के दरवाजे के लिए खुल जाएगा दरवाजा, I cannot take his house. तब मैं उसके घर को नहीं ले सकता। So better make him busy, इससे अच्छा यह है कि उसको व्यस्त कर दो, and he will tell to wife, वो अपनी पत्नी से कहेगा you go to the church. तू चर्च चली जाना। The devil is very clever. देखिए शैतान बहुत बुद्धिमान है, He is a deceiver. वो भरमाने वाला है। That's why, इसीलिए see how he deceived the Eve. देखिए उसने कैसे हवा को उसने भरमा दिया। What God commanded them? उन परमेश्वर को क्या आज्ञा दी थी? Don't eat this fruit. इस फल को मत खाना। If you eat, अगर आप खाएंगे your eyes will open. आपकी आंखें खुल जाएंगी। Yes or no? हाँ या ना? Adam has seen आदम ने देखा Eve is eating the fruit. हवा तो फल खा रही है, Eyes are not open. आंखें तो नहीं खुल रही। Meaning, अर्थ ये है, what God said, परमेश्वर ने क्या कहा था? what God said, जो परमेश्वर ने कहा था it's not true. वो सच नहीं है। Meaning, अर्थ ये I है, also can eat this fruit. मैं भी फल खा सकता My हूँ, eyes will not open. मेरे भी आंखें नहीं खुलेंगी। When he ate the fruit, जब उसने आदम ने जब फल खाया, entire scenario happened. सब कुछ वहाँ पर होने चालू हो You know गया। what happened there? अब जानते वहाँ पर क्या हुआ? What he was having, जो उसके पास था authority, अधिकार, it hand over to the devil. उसने शैतान को दे दिया। That's why you can see और इसलिए आप देखते हैं Matthew chapter 4, 32 का चौथा Luke अध्याय, chapter 4, लूका चौथा अध्याय, when devil came to tempt Jesus, जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया, what the devil said? शैतान ने क्या कहा? If you bow down before me, अगर तू मेरे सामने झुक जाए, if you worship me, अगर तू मुझे आराधना करे, मेरे I will give this to you. मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। What the foolish devil is. अब देखिए शैतान कितना मूर्ख He है, is telling to a creator, जो सृष्टि करता है उसको बोल रहा है I will give this to you. ये सब मैं तुझको दे दूंगा। How he got that boldness or authority to tell the creator, I will give to you. और सृष्टिकर्ता को इतना बोलने का हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आया? Because क्योंकि somebody has given him. क्योंकि किसने तो भी उसको वो दिया था। Who gave? किसने दिया था? Adam. आदम ने दिया But था। what is the good news? लेकिन सुसमाचार क्या है? Jesus came. यीशु मसीह Jesus आए, died on the cross. यीशु मसीह सूली पर मर गए, He went deep to the hell. वो नरक में बहुत गहराई में गए। What happened there? वहां पर क्या हुआ? In these 3 days, इन 3 दिनों में devil thought, शैतान ने सोचा, I have made my big picture clear. Now Christ is finished. उस शैतान ने कहा कि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है, मसीह खत्म हो गया But the है। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है on the 3rd day, तीसरे दिन when he resurrected from the death, जब वो मुर्दों में से जी उठा he defeated the last enemy, that is the death. और उसने आखिरी जो हमारा शत्रु था वो मृत्यु उसको हरा दिया। And what happened? और क्या हुआ? He striped back that authority which was in the hand of Lucifer, in the devil. He striped it back. और उसने कहा कि शैतान के हाथों में जो अधिकार था उसने उसको वापस छीन लिया है। And he resurrected from the death. और वो मुर्दों में से जी उठा। After the resurrection, he said, और पुनरुत्थान के बाद उसने कहा, what he said? उसने क्या कहा? All authority सारा अधिकार on this earth, इस पृथ्वी पर in the heaven, और स्वर्ग में is given to me. मुझे दिया गया And है, I give to you. मैं तुमको देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Another thing I want to tell you. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। First man, पहला आदम, पहला मनुष्य the Adam, जो आदम था, he was having only one authority. उसके पास एक ही अधिकार था। You know what authority? अब जानते कौन सा अधिकार था? It was on this earth only. सिर्फ इस पृथ्वी पर उसको अधिकार था। But a second Adam, लेकिन दूसरा आदम, what a good news. कितना अच्छा सुसमाचार You है। know what?
आप जानते क्या? He did not give you the authority, only one authority. और उसने सिर्फ आपको एक ही अधिकार नहीं दिया, He gave you the dual authority. उसने आपको डबल 2 अधिकार दिए हैं. That's why he says, और इसलिए वो कहता है, what you will bind on this earth, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे, it will be bound in the heaven. तो वो स्वर्ग में भी बांधेगा. What you will lose here, जो आप यहाँ पर खोलोगे, it will be loose there. वो वहाँ पर खुल जाएगा. I don't see a joy in you. आप आनंदित नहीं है क्या? हालेलुया. Jesus has given you the both authorities. यीशु मसीह ने आपको दोनों अधिकार दिए हैं. Can you open Matthew chapter 16? आप मत्ती इसका 16वां अध्याय निकाल सकते हैं verse 18. और 18 पद. I'm going to finish now. अब मैं यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ. Tomorrow, कल I will continue the same subject. इसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा. But I know 100%. लेकिन मैं 100% जानता हूँ. I will teach you how to use your authority. मैं ये सिखाऊंगा कि आप अपने अधिकार को कैसा उपयोग करें. And from today onwards, और आज के बाद से your life will never be the same. आपका जीवन एक आज के जैसा नहीं रहेगा. एक जैसा नहीं रहेगा. हाँ, एक जैसा नहीं रहेगा. Not only that, उतना ही नहीं, struggles will not rule over your life. और आपके जीवन पर आपके संघर्ष राज्य नहीं करेंगे. You will start to dominate your struggles. आपके संघर्ष पर आप अधिकार चलाएंगे. Sickness cannot dominate you. और बीमारी आप पर राज्य नहीं कर सकती. Devil cannot dominate you. और शैतान आपको दबा नहीं सकता. You will cast out everything in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बाहर निकाल देंगे. Hallelujah. हालेलुया. You will never allow the devil to conquer over the nation, over the city of Nagpur. आप कभी शैतान को अनुमति नहीं देंगे कि नागपुर शहर पर वो अधिकार करे. Because you have the ultimate authority. क्योंकि आपके पास वो अंतिम अधिकार है. Hallelujah. हालेलुया. Can you read the scripture? आगे हम लोग वचन पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय Verse 18. और 18 पद. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. Okay. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. Okay. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा. और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा. Hallelujah. हालेलुया. Adam was having authority over this earth only. सिर्फ इस पृथ्वी पर ही उसके पास अधिकार था. He was not having the authority of binding and loosing. उसको बांधने और खोलने का अधिकार नहीं था. He was not having the authority to plant and root it out. और उसको बोने का और उसको उखाड़ने का अधिकार उसके पास नहीं था. He was having authority over the earth only. सिर्फ पृथ्वी पर उसको अधिकार था. But Jesus came. लेकिन यीशु आया. He redeemed you by His blood. अपने लहू से उसने आपको छुड़ा लिया है. He brought the forgiveness of sin in your life. आपके जीवन में पापों की क्षमा लेकर आया है. And right after that, और उसके बाद what He said, उसने क्या कहा? what you will bind here, जो कुछ तुम यहाँ बांधोगे it will be bound in the heaven. वो स्वर्ग में बंधेगा. What you will lose here, जो आप यहाँ पर खोल दोगे it will be loose in the heaven. वो स्वर्ग में खुल जाएगा. You are the ultimate authority. आप जो है आप अंतिम अधिकार आप रखते हैं. Church, you need to stand in your position. कलीसिया आपको अपने पद पर पोजीशन पे खड़े होना And है. whatever you see the devil is doing in your city, आपके शहर में जो कुछ आप देखते हैं कि शैतान कर रहा है, use the authority which is given to you by the name of Jesus. जो अधिकार आपको दिया गया है यीशु मसीह के नाम से उसका उपयोग करे. And bind everything. और सब कुछ बांध दे. Bind the addictions. और उन व्यसनों को बांध दे. Bind the death from your city. और आपके शहर से मृत्यु को बांध दे. Bind the powers of darkness. अंधकार की शक्तियों को बांध दे. When you bind it, जब आप उसको बांधते हैं it will be bound. वो बंध जाएगा. When you lose the revival of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की बेदारी को खोलते हैं it will be loose in your city. आपके शहर में वो खुल जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहे, what you will bind, जो तुम बांधोगे it will be bound. वो बांध दिया जाएगा. What you will lose, जो तुम खोलोगे it will be loose. वो खुल जाएगा. Jesus said that. यीशु ने वो कहा He है. has given you the keys. उसने तुमको कुंजियां दिया है. Why the keys? क्यों कुंजियां दिया Why है? the keys? क्यों कुंजियां दिया है? Keys are given to lock and the unlock. और चाबी या कुंजी दिया जाए ताकि तुम उसको बंद करो या खोल दो. What you will bind, it will be bound. जो कुछ तुम बांधोगे वो बन जाएगा. What you will open, it will be open. जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा. In the name of Jesus, यीशु के नाम से we open the revival over the city of Nagpur in Jesus' name. यीशु के नाम से नागपुर शहर पर बेदारी को हम खोलते Let हैं. every church of Nagpur
नागपुर की हर एक कलीसिया, let there be revival. वहाँ पे बेदारी आ Let जाए, there be unity. वहाँ पर एकता आ जाए, Let there be a mighty move of the Spirit. पवित्र आत्मा की बड़ा चलन वहाँ पर आ जाए। As the Nagpur is the center of India, जैसे नागपुर भारत देश का केंद्र स्थान we है, stand in this center tonight हम आज की रात इस केंद्र स्थान में खड़े होते and we हैं say in the name of और Jesus, हम कहते हैं यीशु के नाम से, let this nation see the revival and the manifestation of the Holy Spirit. ये देश, राष्ट्र, ये शहर पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को, उस प्रकटीकरण को देख ले। You have the power आपके पास वो सामर्थ है, by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा It is given to you. आपको दिया गया है। What you will bind, जो कुछ तुम बांधोगे it will be bound. वो बांध दिया जाएगा, What you will loose, जो कुछ तुम खोलोगे it will be loose. वो खुल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Can I tell you the another truth? एक और सत्य मैं आपको बताऊं, But the Paul says, पौलुस कहते हैं every knee shall bow, हर एक घुटना टिकेगा, every tongue shall confess. हर एक जुबान अंगीकार करेगी, In this earth, इस पृथ्वी पर, on the heaven, स्वर्ग में below the earth. और पृथ्वी के नीचे। Meaning what? अर्थ, उसका अर्थ क्या है? Not the dual authority only. और सिर्फ दो अधिकार नहीं, In 3 realms, और 3 आयाम में Jesus has the ultimate authority. यीशु मसीह के पास अंतिम अधिकार That's the है, reason और इसीलिए ये कारण है you can overcome over every principalities and powers of darkness. अंधकार की सारी शक्तियों पर, सारे अधिकारियों पर आप अधिकार रखकर जीत सकते हैं। Meaning what? उसका अर्थ क्या है? You are having a supreme authority. आपके पास में भी वो सर्वोच्च अधिकार है, That's why और इसीलिए you read in Ephesians chapter 1, और इफिसियों के अध्याय पत्री में पहले अध्याय को अगर आप पढ़े verse 20 onwards, 20 वचन से आगे, you know what it is said? आप देखते बाइबल क्या बताती He है, is resurrected. और वो पुनरुत्थित हुआ, He is seated on the right side of Father. परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर वो बैठा है, All the principalities, और सारे अधिकार, all the powers, सारे जो सामर्थ्य शक्तियां हैं, everything सब कुछ जो है is under His feet. वो उसके पैरों के नीचे है। Under whose feet? किसके पैरों के नीचे है? Under the feet of Jesus. यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। Who is the feet of Jesus? यीशु मसीह के पैर कौन है? Bible says बाइबल कहती है Jesus is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Then who is the church? तो कलीसिया कौन है? Church is the body of वो Christ. मसीह की देह है। Meaning what? उसका अर्थ क्या है? His legs are the part of the body. और जो पैर है उसके शरीर का अंग है। Meaning what? इसका अर्थ क्या है? All principalities, सारे अधिकार, all the powers of darkness सारे अंधकार की शक्तियां is under the feet of the church. वो कलीसिया के पैरों के नीचे है। Meaning what? उसका अर्थ क्या है? Church is having ultimate authority over the city. शहरों के ऊपर कलीसिया का सर्वोच्च अधिकार है। You are not using, that's why devil is taking. आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए शैतान उसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। When the Lord spoke to me परमेश्वर ने मुझसे कहा to start something in my city, मेरे शहर में कुछ शुरू करने के you लिए, know what I did? अब जानते हैं मैंने क्या I किया? know the authority. मुझे अधिकार मालूम है। I started to bind it मैंने उसको बांधना शुरू कर दिया and I started to loose. और मैंने खोलना भी शुरू कर दिया। And you know what? अब जानते हैं क्या? Without advertisement, और बिना पब्लिसिटी के एडवर्टाइजमेंट किए more than 500-600 people come to our fellowship. और 500 से 600 लोग हमारे संगति में आते हैं। We did not start the fellowship with 10 people. हमने 10 लोगों के साथ संगति को शुरू नहीं We किया, started with more than 500. वो 500 से अधिक से वो शुरू हुआ है। Even the people are ready to come from the 200-300 kilometers to join. और लोग तो 200-300 किलोमीटर से भी हमारे पास आना चाहते हैं। Let me tell you why it is. और मैं उनको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। Because I know क्योंकि मैं जानता हूँ what I will bind, मैं क्या बांधूंगा it will be bound. वो बांध दिया जाएगा, What I will loose, जो भी मैं खोलूंगा it will be loose. वो खुल जाएगा। Let me tell you one thing. एक बात मैं आपको बताना You चाहता have हूँ, the authority. आपके पास वो अधिकार You है, have the authority. आपके पास वो अधिकार है। Tonight your Jesus is telling you, और मेरा यीशु मसीह आपको बता रहा I है, have given you the keys. मैंने तुमको कुंजियां I दिया have है, given you the authority. मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया है। If you bind, अगर तुम बांधोगे, if you bind your failures, it will be bound. अगर आप अपने असफलताओं को बांधोगे, बांध दिए If you जाएंगे। bind your struggles, it will be
bound. अगर आप अपने संघर्ष को बांध देंगे वो बांध दिए If you जाएंगे. bind your sickness, it will be अगर bound. आप अपनी बीमारी को बांध देंगे वो बांध दिए And जाएंगे. if you open the church growth, it will be open. अगर आप कलीसिया की उन्नति को खोलेंगे तो वो खुल If जाएगा. you open the revival, it will open. अगर आप बेदारी को खोलेंगे तो खुल